بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مومنہ ساجد اور میں ہوں عدیل ممتاز۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا۔ ریفرنس رجسٹرار آفس پہنچنے کے فوری بعد واپس لیا گیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ مبینہ طور پر تبدیل ہونے کے نکات شامل کر کے ریفرنس دوبارہ دائر کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج۔ پی ٹی آئی ارکان کو الیکشن کمیشن کے گیٹ پر روک دیا گیا۔ ارکان پلے کارڈز اٹھائے نعرے لگاتے رہے۔ الیکشن کمیشن دفتر پہنچے۔ نادرا چوک پر اجازت نہ ملنے کے بعد احتجاج F9 پارک منتقل۔ عمران خان احتجاجی مظاہرے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری کا امکان۔ عمران خان اور دیگر کو ای سی ایل میں ڈالنے پر مشاورت۔ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر تو شاخانہ سے ملنے والے تحائف چھپانے پر نائل قرار دینے کی صدا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ کھانے پینے کی اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی میں کمی۔ گندم کی درآمد ڈیوٹی فری قرار۔ اطلاق 1 جولائی سے ہو چکا۔ حکومتی اقدام کے نتیجے میں کئی اشیاء سستی ہونے کا امکان۔ اور سندھ حکومت پراپرٹی ٹیکس وصولی سے دستبردار ہو گئی۔ ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بلدیاتی نمائندے کے سپرد کر دیا۔ کراچی میں اربوں کا پراپرٹی ٹیکس بلدیاتی ادارے وصول کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب رخ کریں گے علاقائی خبروں کی جانب۔ ساہیوال میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام شہدائے پولیس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود، زونل کمانڈر محمد محبوب اسلم کے احکامات کی روشنی میں سیکٹر کمانڈر محمد شہباز عالم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 4 اگست یوم شہدائے پولیس کے موقع پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے شہداء کی روحوں کو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں یونیفارم اور نان یونیفارم افسران نے شرکت کی، جس میں شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر محمد شہباز عالم نے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جومر ہیں، جنہوں نے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے بلا خوف و خطر اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے اور ان فرائض کی انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ ہم ان شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور کسی بھی صورت فراموش نہیں کریں گے۔ قرآن خوانی کے اختتام پر ملک و ملت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ملک بھر کی طرح بوانہ میں مجالس شبیہ ذوالجناح اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناصر علی کارب کے گھر سے شبیہ ذوالجناح اور ماتمی جلوس برآمد ہوا ہے۔ ماتمی جلوس میں عاشقان اہل بیت کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ماتمی جلوس کے شرکا نے نواخوانی اور ماتمداری کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو پرسہ پیش کیا۔ شبیہ ذوالجناح اور ماتمی جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ جگی عباس میں اختتام پذیر ہوا۔ محبان اہل بیت کے لیے لنگر حسینی کا وسیع انتظام کیا گیا۔ جلوسوں کے راستوں میں سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ حیدرآباد جام شورو ڈی سی آفس کے سامنے بم دھماکے کی آواز، شہریوں میں خوف پھیل گیا، جبکہ دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے پولیس اور رینجرز کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی اور بم ڈسپوزیبل کو بھی طلب کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ پولیس کو دھماکے کی جگہ سے ایک لاش بھی برآمد ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اللہ بخش کھوکھر والد مولا بخش کھوکھر ASI کا بیٹا ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے ایدی گاڑی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج سجاول میں شہداء پولیس کا دن منایا جا رہا ہے۔ SSPO آفس سجاول میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں شہداء کی یادگار پر سلامی دی گئی۔ مزید شہباز میمن کی اس رپورٹ میں۔ شہدائے پولیس کے حوالے سے SSP آفس سجاول میں تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈپٹی کمشنر سجاول شہریار میمن، SSP سجاول امداد علی شاہ، پاک رینجرز کے انسپکٹر احمد سمیت DSPs اور SHOs نے شرکت کی، جس میں شہید پولیس اہلکاروں کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سجاول، SSP سجاول امداد علی شاہ اور پاک رینجرز کے احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نوجوانوں کے لیے میرا یہ جو خصوصاً ابھی ہم فریش آرڈر بھی دے رہے ہیں، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ جیسے دلیری سے ہمارے برہمانی شہید ہوئے اور بنا خوف کہ انہوں نے وہ ڈاکو سے لڑے اور آگے چل کے فرسٹ مورچے پہ انہوں نے ایک ڈاکو بھی مارا اور خود بھی شہادت پائی۔ تو یہ ہمارا کام ہی یہ ہے، ہم جس دن وردی پہنتے ہیں اس دن حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم وطن کے لیے، قوم کے لیے ہم جان کا نذرانہ دیں گے، تو اسی حلف پہ چلیں گے اور شہیدوں کو ہم ویسے ہی یاد کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔
ये ताज़ा ताज़ा जो देखो सैलाब हो या कुछ भी हो, उसमें रेंजर्स, आर्मी, पुलिस, रेवेन्यू, ऐसे नहीं कि रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू का भी ये काम है, वो भी हमारे साथ होती है। तो उसमें हमारा जनरल शहीद हो गया अभी, जनरल, और ये हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू करते हुए। तो ये शहादत जो है वो बहुत बड़ा रुतबा है, और मैं इसके लिए ये कहूँगा कि अपने शहीदों को हम कभी नहीं भूलेंगे। पुलिस के शहदा और जो हमारे अपने जवान रेंजर के शहदा, हम उन सबको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और जो जितने भी माशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं सब उनको सलाम पेश करते हैं। और हम भी जैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हम भी उनके पीछे कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ हमेशा रंग लाएं। आज क्योंकि रहमानी साहब सजावल पुलिस के शहीद हुए थे, उनकी याद में हमने ये दिन मनाया है। दिस डे बिलोंग्स टू हिम। तो तमाम नौजवानों को मैं यही दूंगा कि यही पैगाम दूंगा कि हमें इससे सबक ये मिलता है कि जितने भी मुश्किल सिचुएशन हो, हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, चाहे वो उसकी सरहदों की हिफाजत हो, उसकी आइडियोलॉजी की हिफाजत हो या माशरती हिफाजत हो। तो हम सबको कमरबस्ता होना चाहिए, यकजा होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए, और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर मुमकिन। यौम शहदाए पुलिस के मनाने का मकसद कौम के उन बहादुर सपूतों को शजायत को सलाम पेश करना है। यौम शहदाए पुलिस पर इस अज़म का इज़हार किया जाता है कि ये सिर्फ पुलिस फोर्स के नहीं बल्कि पूरी कौम के शहदा हैं, और हम अपने शहदा की कुर्बानी को भूले नहीं हैं और न ही कभी भूलेंगे। हमें उनकी अजीम कुर्बानियों पर फ़ख्र है। कि मेरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सजावल। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी योम शहदा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। 4 अगस्त योम शहदाए पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से DPO 4 सेदा सुहेल खालिद का क्या कहना था, मज़ीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ नवाजुद्दीन से। जी नवाजुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारसदा के DPO ऑफिस में, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है DPO सुहेल खालिद साहब। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि 4 अगस्त योम शहदा मनाई जाती है, इस मुनासिबत से हम बात करना चाहते हैं। DPO साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज योम शहदा का दिन है 4 अगस्त से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज 4 अगस्त का दिन योम शहदा के तौर पर मनाया जाता है, और इस दिन में अभी हमने बहुत सारे प्रोग्रामात अरेंज किए हैं, और इन प्रोग्रामात का मकसद यही है कि हम उन शहदा को खराज तस्लीम पेश कर सकें कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस ज़िले का और इस सूबे का अमन बहाल किया है। हमारे इस ज़िले में तकरीबन 93 के करीब शहदा हैं, और जो कि पिछले 15 से 20 सालों के दरमियान जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, और उन्हीं की कुर्बानियों का समर है आज के इस ज़िले में एक मिसाली अमन मौजूद है, और इस सूबे में एक माशाल्लाह पहले से हालात बहुत बेहतर हैं, और इन्हीं की कुर्बानी की वजह से आज दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी जा चुकी है, और शहर का अमन अमान बहाल किया गया। आज हम उनको ही खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और यकीनन उनकी कुर्बानियाँ इस लायक हैं कि उनको सराहा जाए और उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक की हदायत पर तकरीब बसिलसिला योम शहदा पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रहीम यार खान में मुनक्किद की गई। शहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए सादिक शहीद पुलिस तकरीब का इनेकाद किया गया। शहदा पुलिस के लिए मस्जिद पुलिस लाइन में कुरान खानी की गई। कुरान खानी में SP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन दोस्त मोहम्मद समेत पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। कुरान खानी के इख्तिताम पर शहदा पुलिस की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। SP इन्वेस्टिगेशन दोस्त मोहम्मद ने शहदा की फैमिली से SP एमन नसरुल्लाह मलिक, DSP लीगर मोहम्मद रज़ाक राना और दीगर अफसरान के हमरा यादगार शहदा पर हाजिरी दी। यादगार शहदा पुलिस पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातह खानी की गई। बलूचिस्तान में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हैदराबाद कासिमाबाद बिजनेस फोरम के सदर के जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल इस वक्त मौजूद है हैदराबाद कासिमाबाद बिजनेस फोरम के सदर रहमतुल्लाह साहब के साथ, जबकि बलूचिस्तान में जो फौजी शहीद हुए हैं उनके हवाले से आइए साइंस से बातचीत करते हैं। उनका क्या क्या? पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे ही हालिया में जो हमारे शुदा हुए हैं बलूचिस्तान में, जो हमारे गरीब लोग जो बलूचिस्तान में सैलाब में फंसे हुए थे, उनकी खिदमत करने के लिए, उनको निकालने के लिए हमारी पाकिस्तान आर्मी सर्विस दे रही थी। और जैसे बॉर्डरों पे करती है, ऐसे ही हमेशा जब भी पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान पे कोई ऐसा दिन आता है तो पाकिस्तान आर्मी सबसे पहले होती है। ऐसे ही जो हमारे शोधा हैं, आपने देखा कि एक नायक से लेके मेजर जनरल तक
उनकी खिदमत में उनकी जो अजीम शहादत आज हुई थी आप 2 दिन पहले, उसको हमने भेंटा पेश करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जवानों को, सारे जवानों के साथ साथ इन शुहदा के लिए हमेशा हम रखते हैं। मुहर्रम शरीफ चल रहा था, उसकी फजीलत और उसकी एहतराम के लिए हमने एक मखसूस प्रोग्राम रखा है। इंशाल्लाह आइंदा करेंगे प्रोग्राम हिसाब से। बहरहाल अभी उनको याद करने के लिए हमेशा की तरह कासिमाबाद के ताजर पूरे पाकिस्तान के ताजर के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, अपनी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और एक ही नारा लगाते हैं हमेशा की तरह, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फौजी जवान जो जब पाकिस्तान पे मुसीबत आती है, उसके अवाम पे जब तकलीफ़ आती है, तो ये जवान वहाँ पहुँचते हैं। कैमरामैन ज़ीशान बलोच के साथ इमरान मुस्तफ़ा, A1 न्यूज़, हैदराबाद। कोल्डी सतिया में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखे गए राखों को ड्यूटी से बर्खास्त किए जाने पर एहतजाज। मुतासरीन का कहना था कि हालिया फायर सीज़न में हमने इस मेहनत और जाँफशानी से आग पर काबू पाया, इसका सिला ये दिया कि हमारे मुंह से नवाला ही छीन लिया गया। मज़ीद इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा A1 TV नवीद सती से। जी नवीद, इस बारे में आगाह कीजिएगा। कोटली सतिया के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखे गए राखों को ड्यूटी से बर्खास्त किए जाने पर शदीद एहतजाज। हालिया फायर सीजन में हमने जिस मेहनत और जाँफशानी से आग पर काबू पाया, इसका सिला ये दिया गया कि हमारे मुंह से नवाला ही छीन लिया गया। मुतासरा राखों का शदीद एहतजाज के दौरान मौक़िफ़। कोटली सतिया कोटा कलर सईदान लेतरार और इनसे मुल्का जंगलात में 10 बिलियन के मंसूबे पर तैनात सैकड़ों राखों को बर्खास्त करने पर कोटली सतिया के दर्जनों राखों का शदीद एहतजाज। सैकड़ों घराने फाका कशी पर मजबूर हो गए, जबकि गुज़श्ता रोज कोटली सतिया के दर्जनों राखों ने जो कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और 10 बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट में लगाए गए थे और नए पौधों की हिफाजत पर मामूर थे, इन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि पहले तो हमें तनख्वाहों की अदायगी 6 माह तक नहीं की जाती थी, फिर भी हमने अपना काम जारी रखा। हम सब गरीब गैरानों से तल्लुक़ रखने वाले हैं। कोटली सतिया और इसके मुल्का जंगलात में फायर सीजन के दौरान आग बुझाना, जो कि हमारी ड्यूटी में भी शामिल न था, मगर हमने दिन रात एक करते हुए अमली किरदार अदा किया। ठुल में मवेशियों में लिम्पिस्किन बीमारी तेजी से फैलने लगी। कई इलाकों समेत महकमे लाइव स्टॉक की लापरवाही के बायस वैक्सीन का अमल ठुल सिटी में भी शुरू ना हो सका। लिम्पिस्किन वायरस ने तबाही मचा दी, जिसके बायस कई देहातों में मवेशी हलाक होने लगे। व्यापारियों ने सिंध हुकूमत और महकमे लाइव स्टॉक से मुतालबा किया कि लिम्पिस्किन वायरस को कंट्रोल करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।